यहोवा के ऊपर मेरे मन जब तक हर कौन और एक जोर से का कमान मेरे जब से यीशु तू मेरा कमान थोड़ा थोड़ा हिलने शुरू कर कमान जब से यीशु मिला है तू ही मेरे जीने की वजह कौन अपना रॉकेट को ही रखो नहीं जब माने कमान तू मिला है तू ही मेरे मेरा ईमान वो शहर जो मेरा ईमान कमान ये I'll sing something, you have to follow, okay? यीशु है खुदा, यीशु है खुद सुन लो यीशु बादशाह, come on guys यीशु forever, come on, hey यीशु forever, come on साथ में हाफ टाइम come on यीशु है खुदा यीशु यीशु बादशाह यीशु है खुदा come on आपका आवाज come on मेरा है वो come on sing जब से यीशु कौन आपका बस come on हम और एक रिपीट करेगा जीने की come on जब से यीशु come on गला फटने लग चिल्लाने हैं जीने की वजह come on आवाज रेडी 1 2 मेरा ईमान है वो शहर मेरा ईमान है यीशुआ मेरा ईमान है रोशनी जो मेरा ईमान यीशुआ हालेलुया Hallelujah. Are you done? Because without music, can we sing जब से यीशु तू मिला? 1 2 3 जब से लड़का लोग और एक रिपीट करेगा इसको धीरे से हे तू ही मेरे जीने की और एक का मतलब आवाज भर जब से थोड़ा पंच ला वॉइस में मिला है हे जीने की वजह है जब से तू मिला है तू ही मेरे Are you tired? Come on, are you tired? Are you tired? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you guys ready? I'll praise in the valley. I'll praise. Hey! I'll praise when I'm sure. I'll
praise. Hey, अपने दोस्त को देखिए बोलो, I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. Come on, that's this. Let's pray. Can you guys sing as long as I'm? As long as I'm breathing, Oh. I got the reason to praise. Praise the Lord. Come on, I won't be quiet. I won't be quiet. Hey, so hey, I won't be quiet. I cannot see your energy, hey! Hey! Oh. कितना जब मार सकता है मेरे के? 1, 2, 3. Can we do this? Come on. Our praise in the valley. Come on. Our applause. Come on. Come on, why? Oh. Got it. I'll praise in the belly. Now do the actions. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Hey, I praise when outnumbered. Hey, praise when surrounded. Come on, can we do praise the water? Come on, dubki maro. Hey, come on, your voice, come on. और जोर से अरे सुनाई नहीं दे रहा है तो आवाज घंटा मत करो कम और एक बार प्रे ஆனந்தத்தோடியாலும் என் கால்கள் ஆனந்தத்தோடியாலும் I don't know if I'm singing right or not ஆனந்தத்தோடியாலும் என் கால்கள் Come on, in Hindi it's like hey आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा Come on, can I see some steps? Come on, are you ready? 1, 2, 3, go! Come on! Hallelujah! Can I ask one last question? कितना का लाइफ से शैतान पहले खुशी को छीन लिया था? कितना का लाइफ से शैतान खुशी छीना था पहले? On, be honest, मेरा लाइफ से छीना है? आपका लाइफ से नहीं छीना है? छीना है ना? अभी समय है वापस लेने का। शैतान बोल रहा है कान्यंग तुम रो। शैतान बोल रहा है सागर तुम मर जाओ। लेकिन हम लोग का रिप्लाई क्या है? रिप्लाई क्या है? आनंद से नाचूंगा मैं। Come on. ओ मेरे बीमारी में भी मेरे कमजोरी में भी come on और एक बार come on मेरे अकेलेपन में भी 1, 2 Are you ready to rap? Come on. Hey, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला अपने लहू से मेरे सारे पाप धो कितना बड़ा करुणा उसने मेरे
पाकर उसने मुझे खुशी से आवाज नहीं है और यार कितना बड़ा है कितना बड़ा करुणा उसने मिट्टी को छुके बुला रहे बंजर जमीन कौन चोना का मारे बंजर हम लोग के पास बस अभी 4 मिनट बचा है डू यू वांना स्टॉप joy 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 down in my heart I've got the joy 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 come on नीचे झुक come on I've got hallelujah come on सब झुको come on I've got आप लोग नहीं झुक रहा है come on नीचे come on नहीं झुक रहा है come on सब झुको come on और एक come on आवाज वहाँ जाएगा come on अब you know the song I'm not ashamed I'm a oh what the world called foolish come on one more time come on can we have the lyrics shame come on nahi pata I'm sinner come on I'm not more what the world called foolish you call freedom come on jump karo I've got you come on जिसको lyrics नहीं पता हम गा देगा I've got joy in the morning joy in the evening you keep me dancing every season whatever comes tomorrow are you ready come on 1 2 I've got you keep me dancing whatever come on शैतान को बताओ hey I've got you keep me dancing hey I've got hallelujah do you have the joy Simon do you have the joy एक joyful person क्या करता है खुशी से भरा हुआ इंसान क्या करता है हाँ तो हंसो दोस्त को देख के हंसो ना अरे बोलो हम आपको देख के नहीं हंस रहे बोलो आपको जो शैतान पीछा करेगा सोच रहे हम उसको सोच के हंस रहे बोलो ऐसा बोलो जो शैतान आपको गिराने के लिए सोच रहा है हम उसको सोच के हंस रहे दोस्त को बोलो आप आईफोन मिला है बोल के आप खुशी नहीं है बोलो आपको शायद नया मेकअप किट मिला है बोल के आप खुशी नहीं है बोलो अपना पड़ोसी को बोलो आपका अंदर में जो है जो सबसे शक्तिशाली है जो आनंद देता है आपके अंदर में यीशु मसीह है हालेलुया 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 can we sing praise for the last time and we'll end do you have still some energy yeah, can I have the key no hey आप शायद कॉपी कर सकेगा let everything that has breath praise the Lord
Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has praise. that has praise. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. Come on, hey. Oh, a praise when I'm sure. A praise when I'm. Oh, a praise when outnumbered. Can we do the water? My enemy. Come on, your voice as long as I. Or don't say. I've got the reason to praise the Lord. Hey, praise, praise. अब अपना दोस्त को देख बोल दोस्त को देख के बोलो come on. Oh, I won't be quiet. My God is alive. So come on, अभी अलग को देख के बोला रे. Oh, I won't be quiet. My God is alive. Shout. अपना आवाज. Hey, praise. Come on, one last time, can you sing? Hey, praise. Hallelujah! Praise the Lord! Did you enjoy? Did you enjoy? Hallelujah! Praise be only to our one and only Jesus Christ. Hallelujah! Okay, अभी 10 बज गया है. जिनको बैप्टिज्म लेना है वो बैप्टिज्म क्लास पीछे है, आप पीछे चले जाइए. नाम दिया वाला जितना भी है ना, आप लोग सब लोग पीछे जाके क्लास में अटेंड कीजिए. सो अभी तक हम लोग यू हैव सीन दैट स्किट ना, जहाँ पे फादर्स लव फादर्स हर्ट को दिखाता है, जहाँ में लक्की बाय एबल भैया जो है वो एक स्किट करता है ना प्रोडिगल सन का. यू हैव सीन ना. सो वी हैव ऑलवेज हर्ड द फादर्स लव फादर्स हार्ट ना, लेकिन आज हम लोग जो मदर का हार्ट को सीखेगा देखिएगा. हालेलुया. सो उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर वन एंड ओनली दोले आंटी. सो इनको छोटा सा टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड आंटी. सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर इवेंजलिस्ट. Bharti Di. I'd like to invite Bharti Di. Please come on the stage. Please do the honor. Okay, so Tasir Bhaiya, I'd like to invite you. Please do the honor. Come on, hallelujah. Come on, जोर से तालियां यीशु के लिए. So ये ना क्लासरूम जो है जो भी पीछे में है, जो थर्ड वाला रूम है वहाँ पे होगा आप लोग का क्लास. हाँ, ओके. सो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो I'd like to invite आंटी. Please do the Praise the Lord to everybody. My children, sit down. सब लोग बैठ जाइए. कल सुबह से कल दिन भर इतना अच्छा ना, हम लोग जो मम्मी लोग बहुत खुशी होता है आप लोग के साथ में. सबसे अच्छा मतलब दिल को खुशी करने वाला एक मम्मी को क्या होता है, क्या होगा ना, बोल के देखो. एक माँ के लिए सबसे अच्छा ग्लैडनेस खुशी क्या होता होगा?
बच्चा लोग, when we see our children, when we see their faces, उनको देखने से, उनको कैसा है देखने से, a mummy becomes very glad. Praise the Lord. Hallelujah. जब हम छोटा था, जब 24 years को तो 24 years को जब उस समय था, तो मैं एक pastor मुझे बोला, आपको बहुत बच्चे होने वाला है. I was so happy, no? मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत बच्चे होगा बोला. I was thinking, oh God, when I get married, जब मैं शादी होगा, आपको बहुत बच्चे होगा सोचा. लेकिन शादी होने के बाद कितने बच्चे हो गए मेरा यहाँ से निकलने वाला कितना है? एक ही है. लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था मालूम है? It was not wrong. It was so true. I didn't know. मुझे मालूम नहीं था मुझे मिनिस्ट्री होगा, मैं अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए. I didn't know anything of that. Praise the Lord. Hallelujah. Only when I got married, I came to know that I have so many children. Praise the Lord. मेरा यहाँ से निकलने वाला एक ही है, लेकिन आप लोग सब मेरे बच्चे हैं. Praise the Lord. That was God told me before my marriage. मैं मालूम नहीं था. हाल इसलिए मैं आपको सबको देखने से I feel it's my own children, my own child. Hallelujah. Praise the Lord. Hello, Sarah. Hi to you. And so, okay, now, आप लोग यहाँ हाथ छू के देखो. Put your hand here and see. What do you see here? नीचे में you feel something here? What is that? क्या बोला था उसको? नाभि. इंग्लिश में क्या बोलता होगा उसको? Anybody knows? What do you say for नाभि? Belly button और navel बोलता है इसको. Navel. इंग्लिश में क्या बोलता है? Navel और belly button. ना नाभि बोलता है हिंदी में. नाभि क्या चीज़ है? नाभि इज अ थिंग, ऐसा चीज़ है जब आप लोग सब अपना मम्मी का पेट में था, जब आपका मम्मी का गोद में लिखा गया इन हर वूम्ब, उसका जो पेट में था, तब देयर वाज अ ट्यूब. एक ट्यूब है जो मम्मी का कोक का अंदर से, वूम्ब का अंदर से आप तक पहुंचाने के लिए, आप जब बच्चे था, देयर वाज अ ट्यूब, एक ट्यूब था, उसको बोलता है अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है. उसके बाद जब बच्चा वहाँ से, वो ट्यूब से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फूड मैटर, क्योंकि बच्चा ग्रोथ होने के लिए फॉर 9 months. ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है, क्या करता है नर्स? क्या करता है? काटता है उसको. cuts that umbilical cord. It's called a cord. इस एक रस्सी है, एक rope है ना, it's like a rope. Cut that nurse cuts that cord. cut करता है क्योंकि आप अलग हो गया. Praise the Lord. You came into the world, आप दुनिया में आ गया. तो मम्मी और बच्चा के साथ में क्या होता है? It's a big connection. एक big bond. Praise the Lord. वो एक umbilical cord से द्वारा आपका नाभि में जो भी एक रस्सी होता है, through which you get the oxygen and the nutrients and everything is from the mummy. जब मम्मी जो खाता है आपको देता है, तो when you come out is cut. So इतना एक bond होता है मम्मी और बच्चा के बीच में. Praise the Lord. That's why, इसलिए जब मम्मी, एक माँ जब बच्चा को देखता है, she feels very happy. It's not that आपने कुछ मम्मी को कुछ दिया, नहीं तो कुछ है ना, आपने कुछ गिफ्ट दिया है, वो नहीं है. Praise the Lord. It's just seeing you. आपको देखने से inside of us, हमारा अंदर एक खुशी होता है. Because it's a bond. It's a bond between the mother and the child. Praise the Lord. इसलिए हम लोग सब, मतलब आप समझना चाहिए वो बात को. शायद आपका माँ आपसे दूर हो सकता है, अभी बस्ती में हो सकता है. Maybe she's died, मर भी गया है. Or maybe she's very old. और जैसे कल हमने सुना, जैक से ना separated from the child, वो सब चीज़ किसी के जीवन में यहाँ में हो सकता होगा. Praise the Lord. But still you have a mother. Somebody gave birth to you, right? ना, कोई तो आपको जन्म दिया है, इसलिए यहाँ में बेटा है कि नहीं? अब किसी का बच्चा तो है, बेटी तो है, बेटा तो है. So you're so precious in this. You didn't come in this world simply. Praise the Lord. आप simply इस दुनिया में नहीं आया. शायद आपका नाम जिसे बोला आपका माँ पिताजी मर भी गया होगा. But you're here for a purpose. Praise the Lord. And that is a connection between the mother and a child. तो जिसके यहाँ में जो बेटे लोग, जो कितना लोगों का मम्मी डैडी अभी जिंदा है, हाथ उठाओ.
So many, maximum are having that. Okay, how many are believer parents? Believer parents, जो आपका विश्वासी हैं, maybe one or both. One होने से भी हाथ उठाइए, ठीक है? थोड़ा सा किसी और भी उठाओ तो हमने इतना देर नहीं देखा. Who all have believer parents? Maybe one or two. Yeah, maximum are having. Good. Praise the Lord. So your parents are parents. Praise the Lord. आप believer हो, वो believer हो या ना हो, हुआ दे, कौन है वो? आपका parents है. They gave birth to you. So that's why इसीलिए परमेश्वर उसको बहुत serious सोचता है. Serious? सोचता है. God considers that very very important. इसलिए abortion क्या है? पाप है. Abortion मतलब क्या है? पाप है. नहीं, मतलब क्या चीज़ है? What is abortion? Abortion वो चीज़ है, पेट में बच्चा होने के बाद उसको मार डालना, उसको बोलता है abortion. Abortion is great sin. हाँ? ना अब तो कोई भी नहीं किया होगा. I don't think you any have done it. But if anyone has gone in for an abortion, please confess your sin. आप बिना जान के भी किया होगा, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम नहीं था, और आपने ये बातों को मालूम ही नहीं था कि वो पाप है, ये है, आप मालूम नहीं था, इसलिए आपने क्या किया? इसको निकाल दिया. यू आर सो यंग, जैसे कल टाइम पास के लिए ना, ऐसे कोई लड़का लोग किया होगा. सो व्हाट इज अबॉर्शन? इज सिन. प्रेज द लॉर्ड. यू शुड रिमेंबर दैट. इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर लाइफ. बॉयज शुड बी केयरफुल, गर्ल्स शुड बी केयरफुल, माय सन्स शुड बी केयरफुल, माय डॉटर्स वेरी केयरफुल हाउ यू लीड योर लाइफ. मैंने शादी किया 29 ईयर्स में. जब मैं 24 ईयर्स को थी, मैं यीशु मसीह को जान लिया. 24 ईयर्स तक मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन था, नॉट बॉर्न अगेन. यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन मैं क्रिश्चियन नाम का था. केरला मेरा पेरेंट्स नॉर्मल क्रिश्चियन से. माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल. एक बड़ा एकदम एक ड्रंकर्ड नहीं था, लेकिन एक से पीने वाला था. और मम्मी तो एक नर्स थी. अच्छा से बढ़ाया, लेकिन बिब्लिकल वैल्यूज में नहीं बढ़ाया. मेरा घर में प्रार्थना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था. जब मैं 24 ईयर्स की होगी, तब मैंने यीशु मसीह को दिल में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया. तब मेरा पास्टर ने बताया, प्रे फॉर योर मैरिज. मुझे मालूम नहीं था ऐसा, मुझे प्रार्थना करने के लिए, मैं शादी के लिए मुझे मालूम नहीं था, कोई पता नहीं बताया था. लेकिन 24 ईयर्स में मैंने शुरू किया प्रार्थना करने के लिए. लॉर्ड आई प्रे फॉर माई मैरिज, मैरिज, मैरिज. हुम टू मैरी, किसको शादी करना. क्योंकि उसके पहले बहुत लड़का को उधर देखा, उधर देखा भी होगा. लेकिन केरला में हम लोग क्या करता है, वी जस्ट लुक एट द बॉयज एंड मे बी वी जस्ट स्माइल इफ यू आर मे बी लाइकिंग, बट वी डोंट टच. प्रेज द लॉर्ड. अरुणाचल में बहुत ज़्यादा जल्दी टचिंग होता है ना, है कि नहीं? बट व्हेन केरला इन साउथ साइड इन मावर टाइम्स, अभी तो बदल भी गया होगा, वी जस्ट वी लुक एट बॉय एंड वी लाइक अ बॉय, वी जस्ट लाइक द बॉय एंड वी जस्ट स्माइल मे बी, और मे सेंड अ लेटर, but we don't touch them. Praise the Lord. We don't go in for anything more than that. Praise the Lord. लेकिन यहाँ में तो देखा, तो जब आंटी अंकल आंटी जब इधर आगे सुना, तो my God, क्लास 8 में they are staying together, they have already have intimacy. It was very shocking for us at the beginning because we were parents. Oh my God, ऐसा है क्या? तो हम जो बोले 24 years के जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं 29 years तक प्रार्थना किया. प्रार्थना करते करते 5 years it took me to meet my husband. Praise the Lord. Pastor Philippos. मैं उसको कभी नहीं देखा, जिंदगी में कभी नहीं देखा है. I didn't have a love marriage with him. Because 24 years के पहले मैं बोला था ना, मैं बिलीवर नहीं था, तो वो लड़का ठीक है, वो लड़का ठीक, वो लड़का ठीक है, ऐसे I used to look like that. But I didn't go more than anything else. 22 years में मैं इंडिया छोड़ के चला गया. I left for abroad to do my employment के लिए. नौकरी मेरा फॉरेन कंट्री में था, लेकिन उधर जाके भी पिताजी मम्मी डैडी का जो बातों को याद किया ना, पापा बोला डोंट लुक द बॉयज, डोंट लुक हियर, तो वो डर मेरा अंदर में था. तो हम बाहर गया होने से भी मैंने कुछ बदमाशी नहीं किया. प्रेज द लॉर्ड. कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने. आई केम बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट. माई मम्मी वॉज वेरी लविंग टू मी. माई पापा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट वेरी गुड पापा. लेकिन मुझे बिब्लिकल वैल्यू में तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अच्छा वैल्यू दिया हमको, ऐसे करो, ऐसे न करो. कौन कौन ऐसे पेरेंट्स आपके घर में ऐसे पेरेंट्स हैं? प्रेज द लॉर्ड. डोंट थिंक बैड ऑफ देम. मतलब ना, आपने आया ये पापा क्या पापा है. माय डैडी तो 6 बजे के बाद कम होम, घर में आ जाओ, 6 बजे के पहले घर आना, नहीं तो लाठी. कहाँ मिलेगा? यहाँ लाठी मिलेगा.
ऐसा एक लाइफ में मम्मी तो इतना प्यारा, लविंग मदर आई हैड। मेरा बाइबल का पिक्चर के बिकॉज 2 साल पहले मेरे माँ गुजर गई, इसलिए मैं उसका फोटो को यहाँ में रखती हूँ। माई मम्मीज फोटो केम इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि केरला में जो मरते हैं हम वो लोग न्यूज़पेपर में डालता है, इसलिए जब मम्मी मर गया तो मेरे वो न्यूज़पेपर में आया, इसलिए मैंने उसको काट के मेरे बाइबल में डाल दिया। शी लव मी सो मच, प्रेज द लॉर्ड। आई एम अ पर्सन हु गॉट मदर्स लव, बहुत कुछ प्यार मामा से मिला, इसलिए आप लोग जो नहीं मिला है, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई हैंड टूवर्ड्स यू, प्रेज द लॉर्ड। आई वॉन्ट टू जस्ट से आई लव यू सो मच। जिस यहाँ में जो मम्मी का प्यार नहीं मिला, मम्मी गुजर भी गया होगा, आई वॉन्ट टू जस्ट पुट माई हैंड्स एंड से हियर आई माई डॉली आंटी, योर मदर, टू लव यू वेन एवर यू, माई हाउस इज ओपन फॉर यू। मेरा घर खुला है, जब भी आ जाइए मेरे बेटी लोग। Whenever you want any love or you want to talk to somebody as a mother, you can come to my house. My house is open for you children. Praise the Lord. Because मैंने बहुत मम्मी का प्यार मिला है। पापा जो strict था, very strict. He used to beat us when you do anything wrong. Beating भी अच्छा है। कौन पापा मम्मी का मार मिला है? हाँ, मिला है? Good. It's very good. ना, हम लोग कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन मार कम होने से इधर मिलेगा। वो भी कहाँ में रखा है? अलमारी के ऊपर में स्टिक रखा है। कहाँ रखा है? अलमारी के ऊपर में बड़ा स्टिक रखा है। वो खुद बोलता है, डॉली गो एंड गेट दैट स्टिक, कम हियर। वही स्टिक हम लोग अलमारी लेके आना, और फिर हम लोग डर से आता है, और उसके बाद पापा को देता है, एंड नाइसली यहाँ में देता है, टाक एक देगा, सुंदर, मतलब वेरी पेनफुल। हम लोग ऐसा भागता था या बोल के ना, बिकॉज इट इज सो पेनफुल, बट इट इज वेरी गुड फॉर अस। वही मार से हम बच गया। Praise the Lord. इसलिए तभी पम्मी डैडी मारने से don't be angry. क्या? What a father and mother, some hopeless and horrible, ऐसे नहीं बोलना. It's good for you because now I'm old. I can say, wow, that beating was really helpful for me. That scolding was very good for me. Praise the Lord. उस समय अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि इतना पढ़ा, I was get good marks. Philby used to beat me. Why you didn't get the or better marks? मैं कभी फेल नहीं हुआ। पिताजी was over strict था, मेरा फादर लिटिल ओवर स्ट्रिक्ट था। उसका आवाज़ सुनने से हम लोग भागता है, मतलब रूम के अंदर से ना, हम लोग जैसे बेटी मम्मी से बात करेगा, ऐसे करेगा, तो पिताजी का स्कूटर का आवाज़ सुनने से ओ पापा आ गया, हम लोग सब अपना रूम में जाता था। दैट वाज माय लाइफ, बट इज़ नॉट बैड। ही वो अच्छा, एक खराब आदमी नहीं था, वो एक स्ट्रिक्ट था, क्योंकि बेटी था ना, हम लोग 5 बेटी है, इसलिए तो बेटियों को थोड़ा संभालने के लिए पिताजी को स्ट्रिक्ट होना ही था। थोड़ा कहाँ में जा रहा है, कहाँ में जा रहा है, कम बैक होम क्विकली, प्रेज द लॉर्ड। दैट वाज माय लाइफ। सो आई गॉट मदर्स लव सो मच, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वांट टू गिव यू द मैक्सिमम व्हाट आई हैव इन माय हार्ट। हालेलुया। एक माँ कैसा है वो आप समझना जरूरी है। और ये वचन से थोड़ा पढ़ेगी एक बार, साम्स 139, तो आगे पढ़ती हूँ, बड़ी से 139 13 to 18, रीड दैट फर्स्ट। कैन आई वाटर प्लीज? ओ मैम वाटर। Psalms 139 का 13 to 18। Psalms 139 13 to 18. We'll read that first. Yeah, it's come up. Okay. Hindi 139 13 to 18. 13 to 18. Hindi, it's not coming. Yeah. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के घर में रचा। 14, let's go on. तूने मुझे, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा हूँ। तेरे काम तो अद्भुत आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। 15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियों तुझसे छिपी न थी। रीड ऑन।
तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई है। और मेरे लिए तो Yes. हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। 18 यदि मैं उनको गिनता तो वे भालू के किनकों में भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। बस सो यहाँ में जैसे हम क्यों पढ़ा है, मतलब आप लोग को यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए यू आर सो वंडरफुली मेड, यू आर सो वंडरफुली मेड। लेट मी लुक एट योर फेसेस, आपको चेहरा को देखिएगा, एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट हियर राइट ना, एक भी सिमिलर नहीं है, एवरीबडी इज सो डिफरेंट, द लुक्स, द आईज, द एवरीथिंग, फीचर्स इज सो डिफरेंट। प्रभु कैसे बनाया, इसलिए परमेश्वर बोलता है यू आर मैन, you have made me fearfully and wonderfully. Praise the Lord. I am dark in color. मेरे मम्मी क्या बोलता था हमको, when I was a small girl, I used to go to school. The school people used to make fun of me. You're dark, you're dark. That time my mummy used to tell me, you're so beautiful. कितना सुंदर है तू, तुम्हारा हंसी कितना अच्छा है. That was helping me. Praise the Lord. So I want to tell you, my girls and my boys, you're so beautiful in sight of the Lord. ना, you don't think that you're ugly or something, मैं अच्छा नहीं है देखने में और क्या क्या है और मेरा खूबसूरती नहीं, मेरा कलर डार्क है, मेरा ये है वो है. Don't think like that. Bible says, Bible कहता है I'm fearfully and wonderfully made. You may be dark or you may be white or whatever it, but who has made you? कौन बनाया आपको? Jesus ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया. And do you think he'll make a mistake? वो mistake करेगा क्या? Never, never. Praise the Lord. ना हम बच्चे जब होते हैं, मम्मी डैडी के क्वालिटी और फेस लुकिंग थोड़ा सिमिलर है. Come here, Abel. Come here. He's my only son. So when we gave birth to him, when he was born, he was so fair. I thought, wow, पापा का कलर मिल गया. पापा बहुत fair है ना. हम बहुत सुंदर बच्चा था देखने में. अभी भी सुंदर है. अभी इतना सुंदर है. But when he was born, he was more white, pinky color. Because मैंने बहुत एप्पल खाया है ना. जब मैं पेट में बहुत एप्पल से होगा. ना पापा के सब वाइट थे, लेकिन थोड़ा 10 दिन के बाद काला होने शुरू किया. 10 दिन के बाद थोड़ा कलर डाउन हो गया, और क्योंकि मम्मी तो खाला है ना. तो चाइल्ड गेट्स वन ऑफ द फीचर्स ना, एक बच्चे को पापा मम्मी का कोई फीचर मिलता है. देन नाउ ही वॉक्स लाइक हिज फादर एंड लुक्स लाइक हिज मदर. मेरा चेहरा है लेकिन चलना किसका है? पापा का. चलने पूरा पापा है. जब वो चलने में, अंकल इज वेरी फास्ट नो रनिंग, सेम थिंग ही गॉट, but color is mine. Go. So I'm just saying, he was a very, very, very precious child which God gave us. एक ही दिया ना. He was so मतलब calm and quiet when he was born. Now I used हल्ला वाला करता है. लेकिन when he was born, he was so quiet. I heard the word shalom when he was born. What does shalom mean? Peace. When he was born, I heard the word shalom. I was thinking, why shall I name him Shalom? Shall I give you the name? उसको हम नाम देगा क्या Shalom? तो देखा तो नहीं, अंकल फिर दोनों एबल रख दिया उसको, जैसे भी एबल रख दिया. लेकिन Shalom I heard because he was such a peaceful child. वो के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ. He was a very peaceful child. He didn't give me any problem. ना कितने parents को problem होता है ना, ये करेगा वो करेगा. He never did that. Even to go to this river, he'll ask me when he was small. हम लोग जब when he was in class 3, I think we came to this complex में रहने के लिए. अभी 20 years हो गया. तब हम क्लास 3 में था. I think so. 2 में था क्या? 2 में था. पपुनाला में था हम लोग पहले, नाहरलगुन. पपुनाला से इधर आया. तब he was very in class 2. That time Miss River, ये तो नदी था ना, ये नदी सामने था. अभी तो दूर हो गया, थोड़ा सा extension हो गया. लेकिन that time also he said, Papa, Mommy, can I go to the river? Can I go and stand there? Can I go to the toilet? Everything he will ask. Praise the Lord. He was a small. Can I go to the gate? Can I go there? Can I go and have a toilet? Go, Betable, go and do toilet. No, he will ask me. That was my son. And he used to ask me everything. He was such a peaceful child. But मैं blessed है. लेकिन but इतना parents जो है ना अरुणाचल में देखने इतना मतलब they are so anxious about children. Because children ना पापा मम्मी का क्या एक heart beat होता है ना. एक heart beat है. We gave because हम लोग हमारे बच्चे अच्छे होना. कौन सा parent चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं होना? Praise the Lord.
Every parent desires that the children should be good. अच्छा से बढ़ के प्यार से बड़ा करके ना अच्छा शादी करने के लिए हम भी every parent has the desire. Praise the Lord. तो मैं जो वचन पढ़ा था भजन संगीता क्या बोलता, how precious are your thoughts to me. तुम्हारा यदि मैं उसके आगे के 17 में लिखा था कि तुम्हारा विचार मेरे लिए कितना क्या है, कितना बहुमूल्य है. 17 डालो तो. Let's read it together. Read it together. 1, 2, 3. और संख्या तो जोड़ जैसे बड़ा. मतलब सो ग्रेट. प्रभु का सोच हमारे बारे में कितना है, इतना प्रेशियस, इतना ज्यादा है. ही इज थिंकिंग फॉर अस. ऐसा हम पेरेंट्स थिंक करते ना, मेरा बच्चा भी बड़ा होने से ये होगा, कितना सपना देखता है, कितना ड्रीम देखता है पेरेंट्स, मेरा बच्चा ये होगा वो होगा ना. एंड व्हेन यू बिकम बिग, इफ यू स्टार्ट डूइंग द रॉन्ग थिंग, दे फील वेरी सैड. दुख लगता है उन लोगों को. लेकिन मुझे इसे अनुभव तो नहीं मिला. ही वाज अ गुड चाइल्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. लेकिन बाकी पेरेंट्स को हम देखता है ना, सब हम दे आर लिटिल अपसेट ना, मेरा बच्चा ये नहीं मानता है वो. बिकॉज व्हाई, एक हार्ट ऑफ मदर को मैं आज बताता हूँ ना. एवरी मदर वांट अ चाइल्ड सबसे सुंदर होना. आप लोग सब अच्छे बच्चों की यहाँ में आया तो अच्छे ही होगा ना, बाकी तो नहीं तो उधर दूसरा जगह में होना था आप लोग. लेकिन आप लोग यहाँ में, दैट मीन्स यू आर द वेरी चोजन प्रेशियस चिल्ड्रन, ब्लेसेड चिल्ड्रन ना. तो भी लिखा है कि इसमें योर थॉट्स टुवर्ड्स मी आर सो प्रेशियस. एवरी मदर है फादर हैज डिजायर्स इन देयर हार्ट. प्रेज द लॉर्ड. मैं बल्कि सोचा था, आई थॉट ही विल डू नौकरी को था. मैंने सोचा तो मन में नहीं था कि वो सेवकाई करेगा. लेकिन मैं जब पेट में था, आई जस्ट कमिटेड हिम फॉर मिनिस्ट्री. मैं जब वो मेरा पेट में था, आई जस्ट कमिटेड, लॉर्ड आई वांट हिम टू डू द मिनिस्ट्री. मैं बोल दिया ऐसा. लेकिन जब बड़ा हो गया उसको पसंद नहीं था मिनिस्ट्री करने के लिए. लेकिन बाद में अभी मिनिस्ट्री में ही है. प्रेज द लॉर्ड. इज अ यूथ पास्टर. सो लाइक दैट एवरी पेरेंट्स हैव अ डिजायर, मेरा बच्चा ये होगा वो होगा. एंड व्हेन यू आर सफरिंग, व्हेन जब आपको दुख है, जब आपको बीमार है, कौन ज्यादा सफरिंग होता है? आपका मम्मी, आपका पापा. व्हेन यू आर सिक, पेरेंट्स आर वेरी वरीड, सैड. सो लेट्स रीड स्क्रिप्चर. मैथ्यू 15 में आएगा. मैथ्यू 15 एक स्क्रिप्चर पोर्शन में आती हूँ. मैथ्यू 15 21 to 28 एक वचन तो पढ़ती हूँ. मैथ्यू 15 21 to 28. मत्ती का पुस्तक 15 अध्याय. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया. सब निकाल दिया ना. मैथ्यू 15 21 to 28. रीड ऑन. या और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. वेट. यहाँ में लिखा है, यहाँ में पढ़ा है कि जब यीशु वाज गोइंग मिनिस्ट्री के लिए जा रहा था टायर और सिदोन देश में, एक वुमन कैनानाइट लेडी, वो जो एक जूइश लेडी नहीं था, कैनानाइट लेडी आके पूछता है, एक कैनानाइट निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही हूँ. दिस मदर इज क्राइंग फॉर हर डॉटर एंड सिंग. प्रार्थना मांग रहा है यीशु मसीह से, मेरा बेटी को क्या हो गया? दुष्ट आत्मा पकड़ा है. यदि किसी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ने, क्या होगा उसका घर का हालत? बोलिए. इतना चिल्लाता होगा, कभी किसी को मारता होगा, कभी नींद नहीं होगा. एंड जब बच्चा नींद नहीं, किसको इफेक्ट होता है? माँ को, पापा को. They also cannot sleep. वो लोग भी सोने नहीं सकेगा ना. घर में क्या हो रहा है? चिल्ला रहा है बेटी, किसी को मार पीट कर रहा है. रिसेंटली एक फैमिली ने हम लोग को फोन किया, मेरे बेटी ने दोनों भाई को मार रहा है. Please pray for my daughter because some demons is inside her. तो ये माँ भी तकलीफ होके, because जब बच्चे सफरिंग में है तो कौन सफरिंग होता है? पेरेंट्स. अंडरस्टैंड दैट ना. वो समझो ये बात को. जब आप दुखी में हैं, योर पेरेंट्स आर सैड. आपको जो पेरेंट्स गुजर गए उसको हम नहीं बोल रहा है, जो पेरेंट्स छोड़ दिया वो हमने इसको नहीं, जिसके पास पेरेंट्स हैं. व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू आर नॉट स्टडीइंग वेल, हु इज गोइंग टू सफरिंग? द पेरेंट्स आर सफरिंग टुगेदर, बिकॉज़ आपका जन्म दिया है. इसीलिए दिस मदर इज, क्या हो गया? ये मम्मी को क्या हो गया? उसके बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया. और नेक्स्ट लिस्ट है 23. पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया. और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है. ये एक लेडी आके यीशु मसीह को बोलता है, मुझे मेरे बेटी को थोड़ा चंगाई करो. तो चेले लोग बोलते, ये इसको विदा दो, लेट हर गो, वो तो इतना चिल्ला रहे, उसको जाने दो.
यीशु मत प्रार्थना करो। उसके नेक्स्ट, उसने उत्तर दिया यीशु ने वो औरत को उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को घोर से किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह भी उसको उत्तर दे रहा है, मैं तुमको अभी मैं नहीं सकेगा, मैं इस्राएल घराने के लिए सिर्फ आया है, आप तो कानानाइट लेडी है, हम नहीं देगा। और नेक्स्ट, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। और क्योंकि यीशु मसीह तो बार बार रिफ्यूज कर रहा है, ये औरत को हम चंगाई नहीं करेगा तुम्हारी बेटी, लेकिन ये बेटी, ये माँ ने हार माना है, हार माना है, इतना बार बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है कुत्तों को, लड़कों की, that one verse before 26, लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों को आगे डालने अच्छा नहीं है, ऐसे यीशु मसीह रिफ्यूज कर रहा है, फिर भी ये माँ नहीं छोड़ता है। और उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चुरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। बीच से गिरते हैं। और 28 यीशु क्या बोलता है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। ये औरत ने नहीं छोड़ रहा यीशु मसीह को। नो जीसस, दाऊद का संतान, मेरे बेटी को चंगा करो, वो एक माँ का दिल है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऑलवेज आफ्टर जीसस। हैव यू सीन द, हम लोग देखा है अभी लेडीज लाइन, ये दोनों लाइन में कौन बड़ा है, कौन ज्यादा नंबर है? बोलिए, गर्ल्स ना। ऑलवेज हर जगह, हर चर्च में कौन सा लाइन बड़ा होगा? लेडीज का। गर्ल्स और वुमेन और लेडीज और आने लोग, they are the ones who are the taking more place। किस लिए? चर्च में जाके बोलने, मेरा बेटी ऐसे हो गया, मेरा बेटी नहीं मानता है, मेरा बेटी प्रार्थना रिक्वेस्ट, पास्टर अंकल प्रार्थना रिक्वेस्ट, मेरा बेटी देखो ऐसा घूम गया, अभी गायब हो गया, और मेरा बेटा अभी बात नहीं मानता है। Who is the one telling? कौन बोलता है? माँ। ज्यादा हमारा चर्च में अरुणाचल ज्यादा है, इवन एवरी प्लेस जाने से आने का लाइन ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड ना। अब वो लोग भी हैं, फादर्स भी अच्छा है, वो लोग थोड़ा सा है, लेकिन द मदर्स आर बिग लाइन। बाइबल बहुत सारा दिखता है, माँ लोग आके, पिताजी भी है, पिताजी अच्छा भी है, अच्छा पिताजी लोग भी बहुत सारा अच्छा पिताजी बाइबल में है, लेकिन ज्यादा माँ मांगता है ना प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, दैट मींस यू नो द हार्ट ऑफ द मदर। मदर का दिल को समझ लीजिए, शी इज वेरी कंसर्न, इतना कंसर्न है, तो आपको भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। मेरा माँ ना, मैं एबल का चेहरा को देखते ही बोल सकते हैं, when he was young, now he is good boy because believer हो गया ना। when he was small in school, he थोड़ा झूठ बोलता था हमको, झूठ, उसका चेहरा देख से हम पकड़ता था। वो माँ है, माँ को बोलने की जरूरी नहीं कि बेटा बोलो, झूठ बोला कि ना, हमको चेहरा देख के हम पकड़ता है, चेहरा देख के हम पकड़ता है कि वो झूठ बोला है। उसका चेहरा देखिए, उसका आवाज से पहचानते। 8, 9, 10 वो केरला पढ़ा था, उसका आवाज, हेलो एबल हाउ आर यू, यू हैड योर फूड, खाना खाया, तो उसका आवाज से पहचानते समथिंग, सब दुख है क्या, देन आई एम वरीड। वो तो कितना किलोमीटर दूर है, लेकिन माँ है, आई अंडरस्टैंड हिज वॉइस, आई कैन मेक आउट फ्रॉम हिज फेस बिकॉज आई एम द मदर। प्रेज द लॉर्ड। तो वही गाना डाला था हमको वही वीडियो में उस समय, अभी तो नहीं। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, I can't hide anything from you, you know everything, ना? तो सब कुछ पता है माँ लोग को। आपका चेहरा देखने से मालूम होता है that you are sad or you are telling lies or what, or whether you are hiding something। तुझे सब है पता मेरी माँ। Praise the Lord। और मेरा माँ को मैं बहुत प्यार करती थी, तो मैं माँ को, मैंने बोला है ना, मेरा माँ का बाइबल सामने में मेरा फोटो रखा है, मेरा माँ so loving। मैं एक गाना गाता था उसको, जब मेरे माँ जिंदा था, अभी गुजर गई, 2 साल हो गया। I used to sing one song to her. Abel, can you play that for me? मैं मेरा माँ को एक गाना गाता था, इंग्लिश सॉन्ग है, because she loved me so much, not only me, my 5 siblings, हम लोग 5 siblings था, 5 को वो बहुत प्यार किया, तो मैंने उसको गाना गाती थी। Likewise, you also should sing to your mother. You must also sing to your mother. You must also respect her, and she likes to hear from you. आपसे भी सुनना चाहता है।
Mother, Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray to the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray to the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I have grown and I can walk straight all on my own. I'd like to give you what you gave to me, Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray to the Lord that He may bless you every night and every day. Thank you. Praise the Lord. माँ को सब कुछ पता है. अभी मुझे गाना गाने के लिए मेरा माँ नहीं है. उसका फ़ोन नंबर को भी हम निकालने के लिए मेरा फ़ोन से बहुत समय लगा. ये वो चला गया ना. Now your mother is alive. Okay, I'm not talking about those who lost their mother. जिसकी mother है, please give her a call sometimes. Praise the Lord. दूर होने से कभी कॉल कीजिए. सामने होने से खाना बना दीजिए. सामने होने से एक चाय बना दो. She may not be perfect. Perfect तो नहीं हो. कौन perfect है? ना? माँ पिताजी कोई perfect तो नहीं होता है. Many mothers are not perfect, fathers are not perfect. They make so many mistakes. I was not perfect mother to Hebel. But we are also human. हम लोग human हैं. We gave birth to you. Praise the Lord. So when they're alive, do something for them. जब वो जिंदा है ना कुछ कीजिए. Don't think that I'll do tomorrow. ऐसे हो जाएगा. I'll tomorrow call करेगा. I used to call my mother. माँ, अम्मा, how are you? You okay? And every birthday को मैं कुछ gift देता है उसको. क्योंकि मैं याद करता है December 18 उसका birthday December 18 चला गया अभी 2 साल 91 years में चला गया. We took good care of her. We didn't keep her in the old home. कोई तो मम्मी को old होने से छोड़ो मम्मी को old हो गया बहुत तकलीफ होता है. ऐसा नहीं है. Take care of her because one day you also become old ना. आप भी एक दिन बूढ़ी तो होगी. Praise the Lord. Take care of your mother and father when they are now here alive. Hallelujah. Are you listening to me? Is it going into your heart? ये मैं जो बोले मत आपके दिल में जा रहा कि नहीं? वो sometimes we just neglect our parents of what they are saying. What boring and not educated people also. My parents. ऐसे ये सोचता होगा अभी कभी बस्ती type. But they are your parents. Hallelujah. You must respect them. You must love them. Because I told अन्य का line कितना बड़ा होता है चर्च में. अंकल पास्टर अंकल मेरा बेटी के लिए प्रार्थना करो. मेरा बेटी अभी चेन्नई जा रहा है. अंकल मेरा बेटी का एग्जाम हो रहा है. प्रार्थना करो. Every time mothers are praying for you. तसर भाई his mother उसका प्रार्थना से तसर भाई विश्वास में आया है. He was not in the Lord. तसर भाई. But through his mother's prayer only he came. Praise the Lord. And Lucky's mother, Meera's sister, used to come to Friday fasting. Now she doesn't come. Kimin पे है. आज के every time ताकि Nakam Lucky प्रार्थना करो. Nakam, his name was Nakam, no? Yeah. He used to pray. Maybe he doesn't know also. वो जानता भी नहीं होगा. वो कॉलेज स्कूल में था होगा. Now she doesn't come. छोटा सा था ये लोग. And Friday fasting prayer में मम्मी मीरा आएगा. His mommy is coming and asking pray for my Lucky Nakam.
We used to pray. Lucky Nakam. Lucky is the big boy, youth pastor now. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody prayed for you. Your mother prayed for you. So that's what you are today. Hallelujah. Your mother prayed for you. Obi's father, his mother is a pastor. Where is Obi? He's not here. Yeah. Her father, mother is a pastor. They also prayed for her. Now she is a powerful woman of God. Hallelujah. Praise the Lord. Somebody prayed for. कोई प्रार्थना किया आप इसलिए आप लोग अभी अच्छा जा रहा है. Don't forget them. Hallelujah. भूलना नहीं उन लोगों को ना. भूल जाने से दुख लगता है. कभी-कभी एबल का घर सामने है. His house is very close by. तो मैं शाम को I used to look at his window. He doesn't know also where I'm looking also. वो जानता भी नहीं हम देखता है. वो उसको याद ही नहीं है. लेकिन I am looking at his window. अभी बाहर आएगा क्या? अभी कपड़ा सुखाए. ओ उसका विंडो खुला है. उसको बताना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए. एबल का डोर खुला है. अभी कोई आने से क्या होगा? Who is concerned? I am looking at him. He is not bothered also. उसका डोर खुला है कि क्या पर्दा बंद हो गया उसको मालूम नहीं है. लेकिन यहाँ से किसका आंख ऊपर में? किसका आंख उधर है? आने का आंख. हालेलुया. आने का आंख उधर है. बच्चा का बेडरूम खुला है और पर्दा नहीं गया. कुछ आदमी आने से मतलब जानवर से मेरा क्या क्या सोचता है. मदर, प्रेज द लॉर्ड. दैट्स द हार्ट ऑफ अ मदर. माँ का दिल ऐसा है. वो मालूम ही नहीं. उसने नाम फोन किया. वो किमिन गया था संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए. ये संडे स्कूल ने यूथ मिनिस्ट्री के लिए. आई नो एबल योर लाइट इज ऑन, योर डोर इज ओपन. तो बोला सारा उधर है. बोला पढ़ रहा है. ओ ठीक है. मुझे मालूम नहीं. यहाँ से देखता है. अंकल तो देखते कौन देखता है? मम्मी. प्रेज द लॉर्ड. मम्मा देखता है. डोर खुला है. बाल कैसे बनाया? खाना खाया कि नहीं? When you come home, who do you call first? किसको बुलाते हैं घर आने से? आन खाना निकालो. Praise the Lord. ना? Mother. That's why do not. जब वो बूढ़ी होती है उसको तुच्छ नहीं जाना. Bible says do not despise your mother when she's old. नीति वचन निकाल. नीति वचन 23 का 22 निकालो. नीति वचन 23:22. नीति वचन 23. Proverbs 23:22. Proverbs 23:22. अपने जन्माने वाले को सुनना और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जाना. When your mother becomes old, do not despise her. उसको तुच्छ नहीं जाना. हाँ बुढ़ी लोग ना कौन संभालेगा उनका भी. तो बोरिंग हो गया. इतना बोले पानी मांग रहे ये मांग रहे. जब तुम्हारा माता बुढ़िया हो जाए तब उसके तुच्छ नहीं जाना. डोंट डिस्पाइज हर. कभी ना वी लाइक टू गो कुछ मेडिकल जाने के लिए हम लोग को बच्चा का जरूरी है ना शॉपिंग जाने के लिए बच्चे का जरूरी है. उस दिन हम गया तो ये तातिंग का मम्मी को बोला तातिंग हमको पैसा दिया हमको शॉपिंग करने के लिए. इसलिए हम कहाँ गया? विशाल गया. बहुत सामान लेके आया घर के लिए. आई वाज वेरी हैप्पी. तातिंग ने मेरा बेटा ने पैसा दिया हमको. हम जाके विशाल से बहुत सामान खरीद के आया. सो वेरी हैप्पी मदर. प्रेज द लॉर्ड. लाइकवाइज मदर्स लोग चाहता है कभी बीच में ना यदि आप लोग नौकरी करने वालों के लिए नौकरी वाले बाई लोग होने से कभी हम लोग को हेल्प करना. यू हैव टू गिव देम सम मनी टू गो शॉपिंग हियर देयर मेडिकल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब मेरा माँ बूढ़ी होगी तो हम लोग सिस्टर लोग पूरा नया चांग लेके दिया. ऐसे मूविंग टाइप मूवेबल चांग विथ व्हील्स and all these things because they are old now. They need to take care. इसलिए आप लोग को उसमें केयर करना बहुत जरूरी है. अभी आप जवान है आप मालूम नहीं है. जब बूढ़ी होती है ना टेक केयर ऑफ देम. प्रेज द लॉर्ड. दे नीड योर लव. दे नीड योर केयर. कौन मम्मी लोग सब खाना खाता है रात को कभी भी? how many of you all eat with your parents? अरे इतना कमती लोग. कौन को मम्मी डैडी दूर होने से अलग बात है लेकिन यदि सामने होने से कौन को मम्मी डैडी साथ में खाना खाता है? खाना बहुत जरूरी है एक साथ. नॉट एवरी डे. यू मे नॉट बिजी ट्यूशन है ये है वो वगैरह ना और कोई हॉस्टल बैठने वाला है. लेकिन कभी जब एक साथ आने क्या करना? खाना भी एक साथ खाने बहुत अच्छा है. Psalms 110 का 110 Psalms 110 verse 111 का 5 111 का 5 लिखा है. भजन संगीता Psalms 111 का 5.
साम्स 1:1 का 5। अब उसने अपने डरवियों को आहार दिया है, खाना दिया, वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। परमेश्वर का बात बोल रहा है कि वो अपनी जो उसको डरता है उसको खाना देता है। और खाना देना क्या है? परमेश्वर का क्या एक वाचा है, कवनेंट है। When he gives us food, dinner, lunch, dinner, breakfast, वो क्या है? परमेश्वर का कवनेंट है कि वो मेरे बच्चों को हम खिलाना पड़ेगा। तो खाना खाना मतलब इट्स अ कवनेंट। प्रेज द लॉर्ड। यू हैव टू रियलाइज दैट। सब खाना खाने के टाइम में ये ऐसे बात मत करना। टॉक द गुड थिंग्स। When you are sitting at the table to eat also, you're talking the good things। अच्छा बात करना, क्योंकि you're sitting is in a place, वो भी एक होली प्लेस है। वो सिर्फ चर्च में आना ताली बजाना वो होली नहीं है। अन्य भाषा बोलना सिर्फ होली नहीं है। बाइबल ने कहा है कि वो अपने डरवियों जो उसको भय मानता है उसको क्या देता है? आहार देता है, खाना देता है। और उसका कवनेंट है, वो अपने वाचा को स्मरण रखता है। मेरे कवनेंट दैट आई हैव टू फीड देम। तो व्हेन यू सिटिंग डाइनिंग टेबल में बैठते टाइम में याद करना, दिस इज गॉड प्रोवाइडिंग फूड फॉर अस। थैंक यू जीसस फॉर गिविंग अस। हमको खाना दिया, आहार दिया। दिस इज योर कवनेंट टू अस टू गिव अस फूड। इसलिए सब मिलके माँ पिताजी मिलके बच्चों लोग से खाना खाना चाहिए। हालेलुया। अच्छा टाइम है शेयरिंग। कभी कभी हम लोग ऐसे करता है, वेरी रेयरली, बिकॉज नाउ दे आर वेरी बिजी नाउ। तो अंकल आंटी एक साथ खाता है, वो दोनों एक साथ खाता है अलग, लेकिन बीच में वी गैदर टुगेदर। विल प्लान, आज आपके घर में खाना खाएगा? Taram, they'll say, no, we will come here. I'll tell, no, come have in my house. Because having together is very important. Please remember that thing. Very important. It's a covenant. Praise the Lord. Even हमको food देना भी पिताजी का covenant है, परमेश्वर का क्या है? Covenant है. So we have to, even that time also, we take it very seriously. Having food together, praying together, वो बहुत बड़ा बढ़िया बात है। Family that prays together, stays together बोलता है ना? The family that prays together stays together unitedly। तो एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर, बात नहीं मानने वाला, और रात में आएगा फिर मम्मी सो गया ऑलरेडी, पापा भी सो गया, उसे नहीं होता है। So let us have बीच में टाइम एक निकालो। आज बहुत दिन हो गए मम्मी ने साथ खाना नहीं खाया, आज खाना खाएगा, ऐसे आप डिसाइड करो। I will have food with them। ऐसे बात करो। कभी घर में इतना शांति वातावरण तो नहीं होता होगा, कभी इसी परिवार में पिताजी झगड़ालू है, that sometimes you be silent, na, don't have to speak much, just have food and go। praise the Lord। ऐसा टाइप आप लोग भी बुद्धिमान होना चाहिए। but have food with your parents sometimes, बीच में ना। जो अभी तक बड़ा तो नहीं हुआ, हर दिन साथ में खाओ, कुछ प्रॉब्लम। मम्मी लोग कहती गया तो वो अलग बात है, अब मम्मी साथ में तो अलग बात है। लेकिन इफ देयर मम्मी इज देयर, मामा चलो एक साथ खाएगा। मम्मी बोला बेटा कहाँ में? हाँ हम इधर हैं, खाना खाएगा? हाँ निकालो हम लोग खाएगा, एक साथ खाओ। वो बिब्लिकल है। इट्स वेरी गुड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स मूव ऑन, हमको आई डोंट हैव मच टाइम नाउ। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, आप लोग कभी दिल के अंदर में सीक्रेट नहीं रखना। डोंट कीप सीक्रेट्स इन योर हार्ट। आइदर शेयर विथ योर फादर और मदर। दोनों को शेयर करने के लिए नहीं सकेगा बोलने से, बोल नॉन बिलीवर होने से, शेयर विथ योर पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, डोंट कीप इट योर हार्ट सीक्रेट्स। वो जवान है ना, तो शैतान भी कुछ कभी कभी डालेगा अंदर कुछ, हाँ ये बात है, ये मत बोलो, उनको मत बोलो, इसको मत बोलो। तब आप रखते 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 अंदर बड़ा गास बनेगा। देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। कैन बी अबाउट अ गर्ल, किसी लड़की के बारे में हो सकता है, लड़के के बारे में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम के, लेकिन किसी को आप शेयर करो जिसने आपको लगता है कि ये एक फेथफुल व्यक्ति है, उसको हम शेयर करने से इट विल बी ओके। थिंक लाइक दैट एंड डू, ऐसे करो। आपको मम्मी डैडी तो शेयर करने का आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो शेयर विथ योर पास्टर, विथ योर चर्च पास्टर। आप लोग सब किसी चर्च का बिलीवर्स है कि नहीं ना? शिपानी से आया, कहाँ से आया, इधर उधर बहुत लोग आया। सो यू हैव टू बी कनेक्ट टू योर लोकल चर्च। हर एक समय आपका लोकल चर्च से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड। तो आपका पापी मम्मी डैडी विश्वास भी नहीं हो सकता होगा, कोई विश्वास में है होने से भी आप जहाँ पढ़ा लिखा पढ़ता है, हॉस्टल बैठता है, कॉलेज बैठता है, यू हैव टू गो टू द लोकल चर्च। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ का पास्टर मिसेस, पास्टर आंटी, आपका यूथ पास्टर, आपका यूथ एक्सर आपको हेल्प करेगा। आपका मम्मी डैडी दूर तो है, बट यू कैन बी क्लोज टू योर यूथ। जैसे सारा और जैक लोग, अच्छा परिवार यहाँ मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा बात है। They got a family now where they can go to, they can learn, they can listen। कभी करेक्शन भी देगा उसको। तो इतना never keep your heart secret। कौन कौन सीक्रेट रखता है? वेरी डेंजरस। मम्मी का दिल से बोलता है,
डोंट कीप इन योर हार्ट, शेयर विद समबडी, बिकॉज शैतान भी कभी कभी आपको अंदर में कुछ इवल थिंग डालता होगा. आप किसी को नहीं बोल के ऐसा जल रहा है अंदर में, किसी को बोल भी नहीं सकता, देन इट विल स्पॉइल योर हेल्थ, इट विल स्पॉइल योर हेल्थ. आई टोल्ड यू नो आई वेंट अब्रॉड. मैं इधर 1 साल उधर था. इतना स्ट्रेस होके मैं पतली होगी. खाना तो अच्छा बढ़िया मिलता उधर, लेकिन आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट दैट आई वाज thin like a what is a skeleton. I used to get good food to eat, लेकिन स्ट्रेस होता है आप लोग किसी को, that will spoil your health, that will spoil your health. So because कुछ तो है अंदर, किसी को बोल नहीं सकने वाला चीज है. You must share it either with your father or mother. मेरे मम्मी क्लोज था, मम्मी को शेयर करता ऐसे आज कॉलेज में ऐसे स्कूल में ऐसे हो गया. I used to share with my mother before. Then बाद में मम्मी तो हम इधर आ गया, अरुणाचल आ गया, तो मम्मी तो बहुत देख नहीं सकेगी, तो हम तो यहाँ का फ्रेंड्स को वुमेन ग्रुप में शेयर करता था. मेरे इसी प्रार्थना करो. You have to share, okay? Don't keep in your heart any secrets. Don't share with everybody, but share with the close people. Otherwise you'll thinking अकेला करते आपका स्ट्रेस आएगा, और आपका स्ट्रेस से आपका हेल्थ भी डाउन हो जाएगा. You will lose your health. Hallelujah. You understand what I'm saying? आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? Very important things. Praise the Lord. आगे जाती हूँ. And I told you to be a part of the local church. आप अब लोकल चर्च का पार्ट होना पड़ेगा. अभी बहुत लोग YouTube में सुन के चर्च जाना जरूरी नहीं है. अभी संडे बैठ के चर्च, I can look the this thing also by the phone ना, मैसेज सुन सकते हैं. चर्च जाना नहीं, very wrong. Biblically चर्च में जाना बहुत जरूरी है. You need to have your own local church. ये बोलना चाहिए कि ये मेरा चर्च है, ये मेरा पास्टर है, बोलने वाला आपको होना पड़ेगा. है कि नहीं है? बोलो. Do you have a pastor? Do you have a youth pastor? Or do you have a pastor auntie? Praise the Lord. They are your spiritual family. आपका फैमिली के अलावा वो लोग भी एक फैमिली है जिसके पास आप जाना पड़ेगा. इससे आपको क्या मिलेगा? Spiritual nourishment, spiritual food. Let's go to the word now. Acts chapter 5 निकालो. Acts 5. Acts 5. Acts 5 का verse 6 पढ़ने से हो गया. यहाँ में एक 2 व्यक्ति यहाँ मर रहा है. अनन्यास और सफीरा बोल के 2 व्यक्ति मर रहे हैं. वहाँ मरने के बाद उसको वो टॉपिक नहीं है. Because I'm trying to see one verse. यहाँ में लिखा है कि Acts chapter 5 verse 6. जब अनन्यास, Acts chapter 5 verse 6. फिर कलीसिया में एक कुछ लोग था, एक आदमी था अनन्यास, वो कुछ गलती किया, मर गया. लेकिन मरने के बाद क्या हो गया? 5 पढ़ो. या 5 and 6. ये बातें सुनते ही हनन्यास गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया. अच्छा 6 पढ़ो. फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया. देखो, अर्ली चर्च, फर्स्ट चर्च का एक व्यक्ति था अनन्यास. वो तो कुछ गलती किया, उस हम टॉपिक नहीं ले रहा है. एंड ही डाइड. क्या हो गया? मर गया. लेकिन 6 में लिखा है जवान लोग उठ के उसको, जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया. कौन गाड़ दिया? जवानों. तो उस समय के चर्च में कौन कौन था? जवान लोग था कि नहीं था? When the early church was there, that time there was pastor Peter was the apostle. Peter was there, John was there, some other people were there. लेकिन साथ साथ कौन भी था? कौन था? जवान लोग भी था, यूथ लोग भी था. जब अनन्यास वो एक व्यक्ति उधर मर गया, कुछ कारण से मर गया होगा, जो भी कारण से, लेकिन कौन उठ जाके वो फ्यूनरल सर्विस में उठा दिया बॉडी को? यूथ लोग. लिखा है जवानों ने जाके. That means चर्च में जवान चाहिए. You have to be a part of the church, that you can run for the funeral service, you can run for the marriage, you can run here and there, because they need you. The church needs youngsters. Praise the Lord. So you have to be part of the local church. You can have आपको एक पास्टर जरूरी है. मेरे पास्टर ये, मेरे पास्टर वो है, मेरे पास्टर ये है, ये नहीं हो सकता. You have to have one pastor. Praise the Lord. One pastor auntie. And then youth के अंदर में youth भी आता आएगा. You can't say my pastor is वो, my pastor है ये भी मेरा. One Sunday हम वहाँ जाएगा और 2 Sunday उधर जाएगा, वो नहीं होता है. Praise the Lord. You need one church where you go to. Otherwise, some other program happen. You can go there also, but you need a say. आपको बोलने के लिए एक जगह होना चाहिए. ये मेरा चर्च है, ऐसे है क्या? You need to have that. Praise the Lord. मेरा चर्च ये है बोलने के लिए आपको एक ये होना चाहिए. यहाँ में लिखा है जब अनन्यास मर गया,
जवानों आके उसको उठा के काट दिया लिखा है। अगेन व्हेन हिज वाइफ आल्सो डाइड, उसका मिसेस भी मर गया, और उसमें लिखा है ये 5 नो 5 का या 10 5 का 10। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। इवन उसके मिसेस भी मर गया बाद में, 5 का 10 मिलेगा। उसके बाद कौन गाड़ दिया? अगेन जवानों। तब जवानों वाज एक्टिव इन द चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए बोलता है यू हैव टू बी देयर इन द चर्च। द चर्च नीड्स यंगस्टर्स, हालेलुया। और अपोस्टल पीटर के साथ में कौन था? जवानों था। अपोस्टल जॉन, कौन था यहाँ में? वो चर्च के समय में दे वर ऑल देयर, द यंगस्टर्स वर देयर टू हेल्प द चर्च। इसलिए आप एक चर्च में जाना जरूर, आप जा रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। यू हैव टू बी, वो वहाँ का क्या मिलेगा आपको? नरिशमेंट मिलेगा, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलेगा, स्पिरिचुअल वर्ड मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। वो भी एक परिवार है, प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज मेरी पास्टर आंटी भी है ना, इसलिए मैं माँ भी हूँ, एक पास्टर आंटी, इसलिए मैं ये बोलना भी ज़रूरी है। सिर्फ एक माँ का बात को नहीं बोलने के लिए मेरे प्रभु बोला है, मतलब मुझे मन में आया, लेकिन एक पास्टर आंटी के रूप में भी आपको ये बताना ज़रूरी है। यू नीड टू गो टू अ लोकल चर्च, जाना ज़रूरी है ना, एंड यू नीड टू नो दिस, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा पास्टर आंटी है, ये बोलने के लिए आपको होना। मेरा भी था, एंड आई यूज्ड टू रेस्पेक्ट देम सो मच। इतना मैं तो रेस्पेक्ट किया है। मेरा पास्टर नैनन, वो 2 साल पहले भी वो भी मर गया, उसका मिसेस भी मर गया, पास्टर आंटी भी मेरा मर गया, पुणे में था। वो मुझे वचन सिखाया, आई वैल्यू देम सो हाई, उसको बहुत हाई प्लेस में रखते हैं कि वो मेरा पास्टर और पास्टर मिसेस था, दोनों मर गया। अभी एक पहले 2 साल पहले मर गया और एक साल पहले मर गया। प्रेज द लॉर्ड। मूविंग अहेड, मूविंग ऑन। और थोड़ा पानी पीती हूँ। लिटिल समथिंग, जस्ट वांट टू शो यू वन क्लिप। उसका पहले मैं एक बात बताना चाहता है, एक क्लिप। कैन यू शो दैट? सो एक उसके पहले तो 2-3 बात बोलना जरूरी है। क्लास 9, क्लास 10 कौन है? क्लास 9 to 12, क्लास 9, 10, 11, 12, रेज योर हैंड्स। 9, 10, 11, 12, या दिस इज योर क्रूशियल, आपका बहुत रिस्की टाइम है ना। क्लास 8 तक इट इज ओके, क्लास 9 से 12 तक क्या टाइम समय है? एक वेरी रिस्की टाइम। वाई? क्यों? यहाँ में ध्यान दीजिए, आपका हार्मोन्स चेंज हो रहा है, थोड़ा दाढ़ी निकल रहा है, थोड़ा 1-2 बाल निकल रहा है यहाँ से, हाँ, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग ना। जब एबल का एक बाल निकला, मम्मी देखो 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 मेरा एक बाल निकल गया, बहुत खुशी है, हमको दिखाया, मम्मी सेकंड वाला भी निकल गया। Because class 9 से class 12 तक your hormones are changing, something's happening in your body ना। आपका आवाज़ भी, मेरा आमोस ना, छोटा वाला यहाँ हिबू आमोस हिबू का बेटा अभी स्कूल गया होगा, उसका आवाज़ भी अभी हो रहा है ना, आंटी दूध लाया, हाय आमोस है क्या वो? बिकॉज आवाज़ चेंज हो रहा है, बिकॉज नाउ इज ग्रोइंग, नाउ इज इन क्लास 7, 8 में, देखो 8 में ही उसका आवाज़ चेंज हो रहा है। ही इज बिकमिंग slowly becoming going to become a big strong man, हालेलुया। तो उसमें आवाज़ चेंज हो जाएगा आपका। इधर गर्ल्स के लिए ना शरीर में बदलावट आता है, प्रेज द लॉर्ड। और बाल यहाँ में थोड़ा आएगा आप लोगों को, बियर्ड, सो हैप्पी, मेरा 2 दिन ये आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। बट दैट इज अ वेरी टाइम ऑल्सो रिस्की। 9, 10, 11, 12 में मम्मी लोग को बोलता है बच्चों को अच्छा से प्रार्थना करो, वो समय में गिरने के चांसेस है ना, बिकॉज इट्स लर्निंग, अब वो समय सीखने का समय है, उस समय आप लोग भी प्रेयर करना जरूरी है। जो क्लास 9, 10, 11, 12 बच्चे लोग, फर्स्ट ईयर कॉलेज भी सेम है। व्हेन यू पास द क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा मैच्योर बनेगा। अच्छा, ओ ये रॉन्ग था, ये राइट था, आप सोचा ये ठीक था, सोचा ये भी आया, ये भी रॉन्ग था। उस समय आपको बहुत मतलब न्यू थिंग्स ना, क्यूरियोसिटी बोलता, क्यूरियोसिटी, ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, हम मम्मी लोग को नहीं पूछेगा, हम ये मैगजीन में देखेगा, ऐसे एक टाइम होता है आप लोग का समय। सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की टाइम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्रेज द लॉर्ड। That is a 9, 10, 11, 12. That is pray, Lord, I should not fall to any kinds of unnecessary bad decisions, wrong decision. में नहीं जाना, आप उसके लिए प्रार्थना करना। और we should be very careful. Those 4 years, go to church every Sunday. ना, वो तरह prayer support मिलेगा। आप लोग क्लास कितना बोला मैं? क्लास 9, 10, 11 and 12. You have to be very careful. ठीक है? Praise the Lord. तो उसके बाद में
या बिफोर यू गो टू आफ्टर यू गो टू कॉलेज बपतिस्मा लेना ज़रूरी है. आज कितने लोग बपतिस्मा ले रहा है? हाउ मेनी पीपल? एंड यू हैव एन आइडिया? 6, 3, 4 ऐसे लेगा बोल के निकल गया बाइबल क्लास के लिए. मतलब बपतिस्मा लेना ज़रूरी है. मैं मेरे चर्च को बोलता है बिफोर यू गो आउट टू कॉलेज लाइफ ना, आप बपतिस्मा लेके चर्च में जाके अटेंड करके बपतिस्मा क्या चीज़ है उसको आप लेके आप फिर कॉलेज जाना चाहिए. देन यू विल ग्रो. वहाँ जब कॉलेज जाएगा भी फाइंड अ चर्च. कहाँ जाना? सपोज जब दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, अपने पिताजी को पैसा है भेजने के लिए, जाओ अच्छा पढ़ा कॉलेज वहाँ में, लेकिन वहाँ में क्या ढूंढना पड़ेगा? चर्च ढूंढना पड़ेगा. आस्क फॉर, लुक फॉर ए गुड चर्च. मैं एबल जब पढ़ाई में गया, उसका जो ये बीए में गया, स्कूल में तो कुछ नहीं, स्कूल में तो छोटा बच्चा था, तब मैंने प्रार्थना किया कुछ चर्च चाहिए. 1 साल चर्च नहीं गया वो. आई वाज सो एंग्शियस. मैं कितना एंग्शियस था क्योंकि हमें अच्छा चर्च मिला है, उसको अच्छा से हमें उसको संभाल के बड़ा कर दिया. उसके बाद जब कॉलेज गया तो वह 1 साल चर्च नहीं मिला. आई वाज वेरी एंग्शियस. वी प्रेड, फिर अच्छा चर्च मिल गया. वही ओलिविया का पापा का चर्च. प्रेज द लॉर्ड. अच्छा चर्च मिला उसको. यूज्ड टू गो एवरी संडे वहाँ अटेंड करके. उसके पास्टर का बेटी को ही शादी कर दिया. वहाँ का पास्टर का बेटी को ही वो ले लिया. उसका वो पास्टर ने उसको मांग लिया हमका बेटा को हमको चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. ऐसे मेरा बेटा वो चला गया. एनीवे इट वाज अ विल ऑफ गॉड. हालेलुया. गॉड्स विल था. क्योंकि मेन एक्सेंट मैं बोलती हूँ, आपका मम्मी डैडी तो ये बात तो नहीं बोलेगा, मैं आपको बोलती हूँ. व्हेन यू गो टू कॉलेज, not Arunachal, outside, you have to find a good church. Very, very important. People are looking that I have to go that college, this college, that college is nice. Look for good college, देखो, लेकिन also look for a church. Many people are वो 3 साल years में church ढूंढता ही नहीं, वापस आएगा तो पूरा वचन भूल गया, prayer भी खत्म, spiritual life खत्म. I've seen many youths of this church. I taught them Sunday school, some small, but बड़ा होते हुए कॉलेज जाके अभी चर्च भी छोड़ सब. जब 3 साल वहाँ पढ़ा, चर्च गया ही नहीं वो. Praise the Lord. Hallelujah. Understood? तो आंटी ने एक कुछ 50 minutes, कुछ मेरा टाइम नहीं है. I want to show you one clip. Can I show one clip? And then it's about a story. एक कहानी है. एक फैमिली ने क्या किया, अपने एक पेपर में, I just show कुछ जो इंग्लिश नहीं सुनने वाला के लिए हम थोड़ा बोलेगा आगे. I think I'll just tell them first. ये जो एक फैमिली ने एक अच्छा टाउन था. अच्छा है क्या था? एक टाउन था. वहाँ में देखा तो एक सडनली एक पेपर में क्या आया, एक पेपर में खबर आया कि एक एडवर्टाइजमेंट. क्या एडवर्टाइजमेंट आया? एक आई वॉन्ट टू सेल, मेरा मम्मी डैडी को बिक्री करने जा रहा है, किसी को चाहिए? मेरा मम्मी डैडी को हम अभी सेलिंग करने, जो सेलिंग करेगा, वेरी ओल्ड हो गया, $10,000 यू हैव टू पे मी. देन मेरा 91 ईयर ओल्ड पापा को लेके जाओ, उसका मेमोरी लॉस है, और मेरा मम्मी को लेके जाओ क्योंकि वो नहीं सकता, और हम नहीं सकता, ये दोनों को नहीं चाहिए. एडवर्टाइजमेंट आया तो पूरा टाउन में एक टॉक हो गया. अरे क्या हो गया, कौन सा बच्चा ऐसे करता है, कौन सा बच्चा ऐसे मम्मी डैडी को बिक्री करता है, हाँ, $10,000 के लिए. माय गॉड, इट्स वेरी शेमलेस थिंग. वे बहुत खराब बात किया, बहुत पाप हो गया. ये कौन सा आदमी किया, हम चलो उसको पुलिस कंप्लेन करेगा. ऐसे एक थिंकिंग लाइक टाउन में एक बड़ा चर्चा हो गया ये चीज़. उसके बाद क्या हो गया, एक कपल, एक परिवार इसको देख के बहुत टच हो गया. अरे कौन उसका मम्मी डैडी को बिक्री करेगा, करने का प्लान है, चलो हम लोग उसको लेगा, हम लोग ही लेके सेवा करेगा. इतना बूढ़ा 91 में ईयर एंड वाइफ इज सम 86. इतना सो सैड दैट कपल इज गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम. सो हम लोग ही लेके, हम लोग को, क्योंकि ये फैमिली को क्या 2 बच्चा था, लेकिन छोटा में उसका पेरेंट्स चला गया, पति पत्नी का पेरेंट्स गुजर गया, इसलिए उसको हम लोग ही लेगा. हम लोग का पेरेंट्स चला गया, हम लोग ही लेके पालेगा बोल के वो लोग प्लान किया, और $10,000 डायरेक्ट अकाउंट में डाल के उधर चला गया, वहाँ वो घर में चला गया. अरे घर सामने आते तो इतना बड़ा घर, बिग. आई एम टेलिंग द स्टोरी इन शॉर्ट बिकॉज किसी को हिंदी इंग्लिश समझता नहीं, अभी दिखाएगा. एंड वो देखा तो उसमें क्या हो गया, वो बड़ा मैंशन, यानी अच्छा बूढ़ा आदमी, लेकिन अच्छा सा आदमी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेमोरी लॉस भी नहीं है, आ गया. तो वाई यू केम? तो बोला थी मैंने एडवर्टाइजमेंट सुन के हम आया, हम अभी आपको एक कपल को लेने के लिए हम आया है. तो हम लोग ही है, देखा तो मिसेस भी है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम तो नहीं है, ओल्ड है. तो बोला आप क्या सोच के हम लोग को लेने के लिए सोचा था? तो बोला हम लोग का पेरेंट्स मर गया, हमारा पेरेंट्स मर गया, सो आई वांट टू, दिस पीपल आर ओल्ड, मैं ही पालेगा, हमको एक भी खुशी हो जाएगा, मेरा पेरेंट्स मर गया ना, मेरे आप लोग को देखने से मेरे खुशी हो जाएगा सोच के वो लेगा. तो उसको प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, वो पेरेंट्स को, वो ओल्ड कपल को क्या था, इतना पैसा कमा के किसी को देने के लिए वो सोच किसको देगा ये घर को, तो उसके बच्चे नहीं था.
वो ओल्ड कपल को क्या नहीं, बच्चे ही नहीं था, तो दे वांट टू गिव इस घर को किसी को देगा, बल्कि कोई बोले मरने वाला है, 91 ईयर्स हो गया, तो वो लोग सोचा किसी को, मेरा कितना वेस्टफुल, ऐसे किसी को नहीं देगा, ऐसे लिखेगा एडवर्टाइजमेंट की, जहाँ तक आदमी तो नहीं आएगा ना, कौन आएगा इसको 91 आदमी को संभालने के लिए, वो मेमोरी लॉस वाला और द अदर वन इज हैविंग प्रॉब्लम, तो ऐसे आदमी तो अच्छा आदमी आएगा, तो ये कपल आ गया, तो उसको ये देखा, तो वी गोइंग टू, अभी कुछ साल के बाद हम लोग मरेगा, इसलिए दिस एवरीथिंग इज योर्स, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज हम लोग को बच्चा नहीं है और आपको भी पेरेंट्स मर गया, एंड आप अभी हम लोग एक साथ बैठेगा, तो उसके 2 बच्चा को अभी ग्रैंड पेरेंट्स मिल गया, so that is why I'm saying when your parents are old, many people are despising, go एक अन्य यहाँ में आता है, मेरे घर में आता है, एक स्टिक पकड़ के, अन्य कहाँ में निशी बात बोलता, हम इतना नहीं समझते, फिर भी को ना शी वांट सम, खाना चाहिए, अच्छा ऐसे बोलता, हम भी सब तरह समझता है, तो हम इसको पकड़ के ऐसे करता है, फिर गेट तक पहुँचाता है, I was thinking where are the children, बच्चे लोग कहाँ में, उनको अन्य को देखने के लिए कोई नहीं किया, ये अन्य को, आने का कभी गलती हो सकता है, मालूम इधर उधर घूमता भी हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी हो, शी इज वेरी वेरी ओल्ड एंड शी कम्स टू माय चर्च, एंड देन शी विल गो, देन आई विल गिव हर टू ड्रिंक सम जूस, एंड देन आई विल लीव हर टिल द गेट, सोचता है कि बच्चे कहाँ में उन लोगों का देखने के लिए, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव पेरेंट्स नाउ, आपको पेरेंट्स है, टेक केयर ऑफ देम, अभी जर जाके मम्मी का पाँव मालिश करो, करता है कोई मसाज करता है, प्रेज द लॉर्ड, अपना पाँव मम्मी डैडी का पाँव मसाज करो, ये दे में छाया ना, they need your presence, they need your, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, put that clip please, praise the Lord, थोड़ा इंग्लिश में, इसलिए आप लोग नहीं समझेगा बोल के हम थोड़ा उसको आपको आगे बता दिया, just see that, उसके बाद हम Once upon a time, there was a beautiful and peaceful town. People lived busy but happy lives. The streets were full of laughter, the shops were lively, and every morning began with the sound of rustling newspapers and the smell of fresh tea. Everything seemed normal, calm, and just like any other day, until one morning, an unusual advertisement appeared in the newspaper. I'm selling my elderly parents for $10,000. Yes, the advertisement was about someone wanting to sell their old parents. It was strange because you don't see something like this every day. In the advertisement, it was written further. My father is 91 years old and suffers from memory loss. My mother is 89 and can only manage her daily tasks with assistance. When people saw this ad, it became the talk of the town. Some said, "What shamelessness is this?" Others demanded that the authorities take action. A few cried out, "Oh God, this is a sin," and some mocked, "Who would pay so much to buy anyone?" I'm really sorry. तो वापस से प्ले करेगा क्योंकि फुल नहीं आ रहा है टीवी पे, सो फिर से चेंज करेगा. We are sorry आंटी. Come again. वापस प्ले करेगा क्योंकि फुल नहीं आ रहा है स्क्रीन पे. इधर तक आ रहा है. मतलब सिर्फ हाफ. Once upon a time, there was a beautiful and peaceful town. People lived busy but happy lives. ये इतना ही आ रहा है ना, और आगे नहीं आ रहा है. फुल वीडियो जो पूरा कवर नहीं हो रहा है टीवी पे. ओहो, मतलब ऐसे कुछ. Once upon a time, there was a beautiful and peaceful town. People lived busy but happy lives. The streets were full of laughter, the shops were lively, and every morning began with the sound of rustling newspapers and the smell of fresh tea. Everything seemed normal, calm, and just like any other day, until one morning, an unusual advertisement appeared in the newspaper. I'm selling my elderly parents for $10,000. Yes, the advertisement was about someone wanting to sell their old parents. It was strange because you don't see something like this every day. In the advertisement, it was written further. My father is 91 years old and suffers from memory loss. My mother is 89 and can only manage her daily tasks with assistance. When people saw this ad, it became the talk of the town. Some said, "What shamelessness is this?" Others demanded that the authorities take action. A few cried out, "Oh God, this is a sin," and some mocked, "Who would pay so much to buy anyone? Who would want to buy old people and take on all that care and headache? Who would willingly buy a problem?" Among those who read the ad was a couple whose own parents had passed away long ago. Their hearts were touched. They decided to buy these for sale elderly parents and serve them with love and care. Without hesitation, they transferred the requested money through the bank and went to the given address to bring the old parents home. To their surprise, the address led them to a grand mansion.
They stood in awe, staring at the beautiful house. The door opened, and a dignified, well-off elderly man welcomed them warmly. The couple said respectfully, "We've come to take the elderly parents mentioned in your advertisement. We've already transferred the money into your account." The elderly man smiled gently and said, "Welcome. But tell me, why did you pay such a large amount for 2 old people? You will only receive problems, worries, and the burden of care from them. Even knowing this, why did you still pay so much?" The young couple looked at each other and then replied, "We both lost our parents in childhood. We had to live our lives without them, and we miss them dearly. We now have 2 little children who feel the absence of their grandparents. We want them to sit in their grandparents' laps, hear stories, play with them, and sleep beside them. We want them to be raised around elders from whom they can learn respect and values." Hearing this, the old man called out to his wife. She came into the room, walking steadily with the help of a cane, a gentle smile gracing her face. The elderly couple exchanged a knowing glance and said softly, "All right, we will go with you. We are the very parents from the advertisement." The young couple was stunned. "But how can this be?" they asked. "The ad said you were helpless, needy people, but you don't seem like that at all." The elderly couple smiled. The woman replied kindly, "We lived our life with love and wisdom. We worked hard, earned well, and built this grand home. But fate never blessed us with children. We decided to give away all our wealth to good-hearted people, but we didn't know how to find them. That's when the idea of giving this advertisement came to us." Tears welled up in the young couple's eyes as the old man added, "Now we are truly happy that our wealth will go into the right hands." The old couple smiled and welcomed them inside. Soon, the quiet mansion was filled with laughter. The children ran around calling them Grandpa and Grandma, bringing life back to the home. Tears filled the old couple's eyes as they finally felt the love of a family they never had. That day, strangers became family, and hearts once empty were full again. Moral of the story: true wealth lies not in money or possessions, but in love, kindness, and family. When we open our hearts to others, even strangers can become family, and empty homes can be filled with joy. Never see your old parents as a burden. They are the living roots of your family tree. Your children grow wiser in their presence, learning love and respect that no book can teach. Their experience is a lifetime of lessons, and their blessings are truly priceless. If you think parents are never a burden, then comment "blessing" and share this story with your loved ones. May God bless you always. Praise the Lord. I want you all to stand up. आप लोग सब खड़ा हो जाइए. हम लोग आंख बंद करेगा. और अब यदि मम्मी का प्रेम नहीं मिला, पापा का प्रेम नहीं मिला, तो you have to get the love of God. परमेश्वर का प्रेम को लेना. बहुत कुछ बोलना था, मेरा समय नहीं है, इसलिए आप लोग सब आंख बंद कीजिए. I'm going to pray for you. आप आंख बंद करो. Thank you, Lord. God's love is like a love of a mother. प्रभु का प्रेम माँ का समान है, पापा का भी समान है. दोनों में अंदर क्वालिटी है, लेकिन more of the mother. Because वचन बोलता है, क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकता है? वो भूल भी सकता है, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा. थैंक यू लॉर्ड. ए मदर कभी अपना बच्चा को, एक माँ नहीं भूल नहीं सकता, लेकिन यदि भूल भी जाए, बाइबल बोलता है कि मैं तुमको नहीं भूलूंगा. परमेश्वर नहीं भूलता है. प्रभु का प्रेम कितना महान, ऊंचा है. वेरी the love of God is so big, so great, that it fills your heart through the Holy Spirit. आप लोग आंख बंद करेगा. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. Thank you Jesus, thank you Lord. है मुझसे Praise you Jesus, the love of God filling your hearts, hallelujah. जान से भी ज्यादा, Yes Lord, thank you जान से Jesus. भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों Thank की you, Jesus. तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह
है मेरी छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ का प्रेम कितना महान है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। थैंक यू जीसस। The love of God fill your hearts. प्रभु का प्रेम आपके दिल में भर जाए। Receive His love tonight, today morning. Do not be sad. आपके दिल में दुख होने मत दीजिए, लेकिन प्रभु का प्रेम बहुत महान है। I will never leave you nor forsake you. प्यार करता है आपसे। प्रभु का प्रेम माँ से भी ज्यादा है। Thank you, Lord Jesus. Let the love of God fill your hearts. The love of Jesus fill your hearts. Hallelujah. ताकि आपके दिल में खालीपन ना होने जाए। आप draw close to Jesus. यीशु आपको सच्चा प्रेम दे सकता है। True love can be given only through Jesus Christ. Thank you, Jesus. Let your name be glorified, Lord. Bless each one of them with your love, Lord. Thank you, Jesus.